Hello students, good morning. I am Dr. Shailaja Bansal with 30 years of teaching experience of biology in reputed public schools over Delhi, Mumbai, Meerut, etc. I have helped many children to get good marks in board and also clear their NEET exams. I am sure my video will help you in clarifying your concepts. Today we will be dealing with DNA structure, as many of the children find it very difficult. But before we proceed to DNA structure, let us try to understand what are cells made up of. आपको पता है हर organism cell का बना हुआ है, पर क्या आपने कभी सोचा है cell किस चीज का बना हुआ है? Coming to the slide, what are cells made up of? See, the cells are made up of, first of all, atoms. Many atoms, they together form molecules, and many molecules together form a cell. Of course, you can say many molecules form organelles and many organelles form a cell. Now, what are the atoms? The atoms are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. Which are the molecules formed by these atoms? We can say proteins बनते हैं, proteins हैं, then we have lipids हैं, carbohydrates हैं, then we have carbohydrates, and last we have nucleic acids. Today we will be studying about nucleic acids. And all of them, they make a cell. There are two types of nucleic acids, as you know, DNA and RNA. Today we will be studying the structure of DNA. आज हम DNA का structure discuss करेंगे. Okay. आपने सबने पढ़ा है डीएनए डबल हेलिक्स होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर दिया है, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो हमें वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, फाइनली उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने डीएनए पे काम किया और सबने कुछ ना कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया. वॉटसन एंड क्रिक ने सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके फाइनली हमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिया. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट एंड ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस वर कंपाइल्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक टू गिव अस अ फाइनल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने क्या स्टडी किया? उन्होंने स्टडी किया न्यूक्लियाई ऑफ डब्ल्यूबीसीज. जब उन्होंने WBCs के न्यूक्लियाई स्टडी किए तो उन्हें उनमें क्या देखा कि एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो है, ऑक्सीजन तो है, बट साथ में फास्फोरस भी है. तो उन्होंने कहा कि ये प्रोटीन्स तो नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स में फास्फोरस नहीं होता. दूसरा, उन्होंने स्टेनिंग से पता किया कि ये एसिडिक इन नेचर है. तो दोनों चीजों को कंबाइन करके उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन. क्या नाम दिया कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको नाम दे दिया न्यूक्लियन. सो व्हाट वी हैव स्टडीड कि फ्रेडरिक स्टडीड द न्यूक्लियाई ऑफ WBCs. He found a molecule which was made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. As phosphorus is not present in proteins, he said this is something different from DNA. And after staining, he found that DNA is acidic in nature, so he gave the name nucleon, means inside nucleus. Second, then there were some scientists who told that there are certain bases present in the DNA. Nitrogen bases होते हैं. फिर कुछ केमिस्ट ने उन नाइट्रोजन बेसेस का स्ट्रक्चर स्टडी किया. मतलब नाउ सी सम साइंटिस्ट दे स्टडीड डीएनए and they told us that there are nitrogen bases present in DNA. The chemists then gave us the structure of these nitrogen bases. उन्होंने कहा कि दो तरह के नाइट्रोजन बेसेस हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स. Purines are having double rings and pyrimidines are having single ring. Then there was Morris and Wilkins. Morris and Wilkins, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की. एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के बाद they gave us 2 points that the DNA is having a helical structure and the diameter is uniform and
जो भी डीएनए को बनाता है वो सारे बराबर बराबर जगह के बाद बराबर बराबर स्पेस पे प्रेजेंट है, रेगुलरली स्पेस्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, कि जो भी चीज डीएनए को बनाती है वो मतलब रेगुलरली सेम डायमीटर के बाद वो प्रेजेंट है। तो ये तीनों चीजें, तीनों फाइंडिंग्स हमें विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने दी। देन अरविंद चारगफ ने क्या स्टडी किया, जो हमें पता चला था कि नाइट्रोजन बेसेस हैं। अरविंद चारगफ ने बोला कि जो प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स हैं उनका नंबर सेम होगा। उन्होंने कहा कि जितने प्यूरिन्स होंगे, द नंबर ऑफ प्यूरिन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिडिन्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्यूरिन्स हैं एडेनिन एंड गुआनिन and pyrimidines हैं cytosine and thiamine. So what did अरविंद चारगफ ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमीन होगा। एडेनिन और थायमीन के जो वो है नंबर वो सेम होगा। सिमिलरली गुआनिन और साइटोसिन का नंबर सेम होगा, मतलब एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन होगा, right? This was told to us by Arvind Chargaff that the number of purines will always be equal to number of pyrimidines. Then एक और साइंटिस्ट था, there was another scientist who told us कि डीएनए को बनाने वाला एक कंपोनेंट जो है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज वन ब्लॉक ऑफ डीएनए। एक छोटा सा ब्लॉक को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाते हैं, डीएनए। इसीलिए डीएनए इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसीलिए वी से दैट डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब अब देखो, बहुत सारे जो फाइंडिंग्स थी साइंटिस्ट की, सारी फाइंडिंग्स को इकट्ठा करके, सारी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके वॉटसन एंड क्रिक ने हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया और बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे अरेंज्ड हैं। That means they gave us the double helical structure of DNA and told us the arrangement of nucleotides. Now let us see what is a nucleotide. See, what is the polynucleotide? What is the meaning of poly? Poly means many. Nucleotides means small organic molecules which will join and make a big molecule. Chalo, now we will see what is the nucleotide made up of. Nucleotide के क्या क्या component हैं? एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं। एक तो है पेंटोज शुगर, पेंटोज मीन्स 5 कार्बन शुगर, एंड देन देयर इज नाइट्रोजन बेसिस एंड देन देयर इज फॉस्फेट ग्रुप। तीनों मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स जॉइन एंड मेक अप nucleotide. Now let us see the structure of these components. See, this is a पेंटोज शुगर, 5 कार्बन है और इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर मींस यहाँ पे OH होना चाहिए था, पर यहाँ पे OH नहीं होता, यहाँ H होता है। एंड द सेकेंड इज फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है। थर्ड इज नाइट्रोजन बेसिस। जैसे आपको मैंने पहले बताया, आई टोल्ड यू बिफोर, नाइट्रोजन बेसिस 2 हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन। Purines are having double ring and pyrimidines are having single ring. So this is the structure which I have made: adenine, guanine, cytosine and thiamine. Cytosine and thiamine are single rings, adenine and guanine are double rings, right? Now, first of all, सबसे पहले क्या होता है, the sugar joins with the base. पहले शुगर बेस से ज्वाइन होता है। जब शुगर और बेस ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। दिस इज द शुगर, दिस इज द बेस, सो दिस इज नाउ कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एंड व्हेन फॉस्फेट ग्रुप विल ज्वाइन विद द न्यूक्लियोसाइड, वी विल गेट द मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अगेन sugar and base, nucleoside, and when phosphate joins, that is called nucleotide. Now there is a you can say arrangement of giving the names. Names कैसे हम देते हैं? The name depends upon the type of base which is present. देखो 4 बेसेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। देख क्या है,
नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, मतलब डीऑक्सीराइबो शुगर होता है एंड बेस है. दिस विल मेक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड. Deoxyribo sugar plus base plus phosphate will make deoxyribonucleotide. Now, if the base is adenine, अगर base adenine है तो क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा deoxyadenosine, मतलब शुगर, जो deoxy शुगर प्लस adenine. तो क्या बन जाएगा? It will be deoxyadenosine and the nucleotide will be called deoxyadenilic acid. जब एडिनोसिन के साथ क्या है, ये होगा शुगर प्लस बेस एडेनिन प्लस फॉस्फेट, और आई कैन राइट हियर शुगर प्लस एडेनिन प्लस फॉस्फेट, इट विल बिकम deoxyadenilic acid. डीऑक्सी हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि शुगर डीऑक्सीराइबोस है. अच्छा, ऐसे ही अगर बेस थायोमीन है तो वो बनेगा थाइमिडीन और ये हो जाएगा थाइमिडिलिक एसिड. अगर बेस गुआनिन है तो नाम होगा डीऑक्सीगुआनोसिन, डीऑक्सीगुआनिलिक एसिड. साइटोसिन है तो डीऑक्सीसाइटिडीन एंड डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड. थायमिन के साथ हम डीऑक्सी नहीं लगाते क्योंकि थायमिन सिर्फ डीएनए में होता है. ओनली डीएनए कंटेन्स थायमिन. क्योंकि हम जब आरएनए का स्ट्रक्चर करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि आरएनए में भी यही बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. उसमें थायमिन नहीं होता. थायमिन सिर्फ डीएनए में होता है. तो अगर मैं आपको बोलूं थाइमिडीन, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए, नॉट आरएनए. So that was naming. Now we come to the structure of DNA molecule. इसमें क्या है? See, this is the structure.